Namaskar and welcome to all of you to Last Mile Education. Today we are here after a long time to continue our class in English and also on some issues, on some topics where we can learn our history, like from where we do belong. This is something that we all know, we all should know. So we are continuing our classes in English so that you can learn the history, geography, polity of the place where you are living and also try to understand a bit English language. So today we are going to discuss about Vijayanagar Empire. We all know that the history of India is so interesting and the history of India belongs to so many different places. If you talk about the Delhi was the center of history, but all history do not belong to Delhi. Like if you see from northeast point of view, then the history totally differ from Delhi. Like there is a totally different history of South India, North India, like Jammu and Kashmir region, Gujarat region, Pakistan region, Bangladesh region, and especially Meghalaya, Mizoram region. So we are here to talk all history of whole India on one channel, that is Last Mile Education. तो स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर से। जब आप 1300, 1400, 1500 शताब्दी में व्हेन यू सी द हिस्ट्री इन दिल्ली, उस समय कौन थे? दिल्ली सल्तनत का राज चल रहा था, तुगलक, बिन, ये सब लोग राज कर रहे थे। बाद में बाबर आ गए तो मुगलिया अंपायर चालू हो गया। उस समय पर साउथ में एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था और उस साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जाम, देन बी इंटरेस्टेड ऑन दिस टॉपिक बिकॉज फॉर द जनरल कंपटीशन एग्जाम विजयनगर एम्पायर इज देयर फर्स्ट लव. As you have know that first love is very much like pure and lovely and very much you will remember in your life. So they never forget their first love, that is Vijayanagar Empire. विजयनगर एम्पायर को शुरू करने के पहले मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहूंगा। उस समय पर दिल्ली सल्तनत में राजा हुआ करते थे तुगलक, और व्हेन ही वाज द किंग ही वांटेड टू कैप्चर ऑल इंडिया इन हिज प्रिजन. मुहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू कैप्चर होल इंडिया इन हिज प्रिजन. मोहम्मद बिन तुगलक जब साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो उनको सामना होता है काम्पिली जगह में एक छोटे से साम्राज्य में. उसको वो बहुत आसानी से ही इन्वेडेड दैट एम्पायर वेरी इजीली एंड कैप्चर्ड 2 मिनिस्टर्स फ्रॉम दैट एम्पायर एंड दोज मिनिस्टर्स वर नन अदर देन Harihar and Bukka. Remember these 2 words. You are going to repeat these 2 words very much, like many a times. So Harihar and Bukka को वो लोग कैप्चर कर कर दिल्ली तक लाते हैं. These were 2 ministers in Kampili town. So they tortured a bit these 2, Harihar and Bukka. After torturing, they said they gave a proposal that accept Islam as your religion, otherwise you are going to hang till death. They were very wise and they accepted Islam as their religion, and after that they were introduced in the administration of Muhammad bin Tughlaq. After that Muhammad bin Tughlaq sent them to the South India to continue their kingdom. They went to Kampili at the same place. And when Harihar and Bukka reached there, they keep the foundation of a very big empire. That empire was Vijayanagar Empire. विजयनगर अंपायर का फाउंडेशन करने के बाद सबसे पहले वो करते हैं कि अपने रिलीजन को फिर से परिवर्तन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ऋषि. वहां पर फिर से वो सनातन बनते हैं, हिंदू बनते हैं. ये 1336 में हो रहा है और 1336 से लेकर 1650 तक यही लगभग डायनेस्टी कंटिन्यू करती है. इसमें 4 भागों में इस डायनेस्टी को आप बांट सकते हो. पहला था संगम डायनेस्टी. संगम डायनेस्टी इस वजह से क्योंकि हरिहर एंड बुक्का के पिताजी का नाम संगम था, तो इसलिए इसको संगम डायनेस्टी बोला जाता है. इसके बाद सालुवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा डायनेस्टी और लास्ट में आराविदा डायनेस्टी. तो चारों डायनेस्टी मिल कर लगभग 300-350 साल
they are ruling the Vijayanagar Empire. Where was the capital of Vijayanagar Empire? This was very interesting. Like there were many rulers in between, so all have their own capital as their choices and comfort. But most of the time, Hampi was the capital of Vijayanagar Empire. And where Hampi is located in today's time? It is located in central Karnataka. Hampi is a UNESCO World Heritage Site also. So people from all over the world, they go to Hampi and visit the town. तो जब हमारा विजयनगर अंपायर फाउंडेशन हो गया तो साउथ में एक और डायनेस्टी था थोड़े दूर पे कृष्णा नदी के किनारे, और वो डायनेस्टी का नाम था बहामनी डायनेस्टी. This dynasty was ruled by the Muslim rulers. So there was always a tussle between Vijayanagar Empire and Bahamani Empire. You know why? For three places mainly. First, there was the Konkan region. What is Konkan region? Konkan region we say to the coastal region of Maharashtra, Goa and Karnataka, because there was a huge horse supply from that region. So there was also a war on the Konkan region. And the next, a huge war going for Krishna Godavari Delta, and the third was Richard Dwab. For these three places, they were fighting huge in between. And what was the situation of religion at that time? In Vijayanagar Empire, there was a dominant place of Hinduism. After that, people were also practicing Buddhism and Jainism. But the coexistence of all religion in हारमोनियस वे. और उस समय पर इस्लाम के भी लोग जाते थे विजयनगर अंपायर में, ट्रेड करते थे, कॉमर्स करते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं था, जो सिचुएशन दिल्ली सल्तनत के और मुगल सल्तनत के समय पर हुआ करता था. इस बीच में दो तीन बड़े बड़े राजा भी आए, तो देवराया 1 और देवराया 2 थे. ये लोग इरिगेशन प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट और बहुत सारे कुछ मुस्लिम क्लर्जी मैन को, कैवलरी मैन को और आर्चरर्स को अपने आर्मी में डिप्लॉय करना और अपने आर्मी को और आगे बढ़ाना, दे वर डूइंग दैट. इस डायनेस्टी में सबसे बड़ा कोई, चारों डायनेस्टी का हम बात कर रहे हैं होलिस्टिकली, इस डायनेस्टी में सबसे बड़ा कोई अगर रूलर हुआ तो कृष्णदेव राय हुए. और इन्हीं बीच में 1498 ईस्वी में वास्को ड गामा इंडिया आते हैं. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं तुलुवा डायनेस्टी, कृष्णदेव राया. ये बहुत बड़े किंग थे अपने हिसाब में, अपने समय में. इनके बड़े बड़े कारनामे थे. सबसे पहले व्हाट ही हैज डन, ही हैज मेड अ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन ऑल द नियरर डायनेस्टीज, ऑल द नियरर स्मॉल स्टेट्स. इसके बाद ही वॉज वेरी फ्रेंडली टू द पोर्तुगीज पीपल ऑल्सो. एंड इनके डायनेस्टी में उड़ीसा ये जीतते हैं. उड़ीसा राज को हाथियों का राज बोला जाता था, बिकॉज दैट रीजन वॉज फिल्ड विद द फॉरेस्ट रीजन, एंड इन फॉरेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड देयर वर मेनी एलिफेंट्स. सो ये जब वो रीजन जीतते हैं तो इनके पास बहुत सारी हाथियां आती हैं. ये विजय महल बनाते हैं, राम टेम्पल बनाते हैं, वैठल स्वामी टेम्पल बनाते हैं. इनको आंध्र भोजा भी कहा जाता है. आंध्र भोज मतलब उस समय भोज वर्ड था, वो बड़े बड़े राजा के लिए यूज किया जाता था. इनको पितामह भी बोला जाता था. लोग अपने तरीके से रिस्पेक्ट दिया करते थे इन सब शब्दों से. ये स्कॉलर थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, तेलुगु के स्कॉलर थे, ये एक पोएट भी थे. एंड ही रेस्पेक्टेड ऑल द लैंग्वेजेस इन हिज रीजन. व्हाट वर द लैंग्वेजेस एट देन? देयर वर 3 to 4 लैंग्वेजेस व्हिच वर predominantly spoken by people of that region. The first one was Telugu, the second one was Kannada, and the third one was Tamil, and the fourth was Sanskrit. तो ये संस्कृत और तेलुगु के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और ये 8 कवियों को रखते थे अपने कोर्ट में, अपने जब ये महल में, और ये सारे लोग कविता इनको सुनाया करते थे. इन्हीं के समय पे इनके कंटेम्पोररी एक किंग आया था भागकर इंडिया में, जिसका नाम बाबर है, और वो अपने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि कृष्णदेव राया वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रेव किंग ऑफ इंडिया. तो ये था हमारा विजयनगर पे डिस्कशन. कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं. एंड वी विल ट्राई टू कंटिन्यू लेक्चर्स in upcoming some days upon the different empires, upon the different topics. Thank you so much. Namaste.